Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the chronic cholecystitis. As in the previous videos we talked about the acute cholecystitis. So आज हम chronic cholecystitis के बारे में बात करेंगे, इसकी जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. So what will be the definition? As the name indicates, it is a chronic inflammation of the gallbladder, and remember one thing, that it is the most common symptomatic disorder of the gallbladder. और इसकी काजेज़ में या तो जो acute कोलिसिस्टाइटिस है उसके जो रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं, मीन्स रिकरेंट एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, वो भी क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस काज कर सकती है. मगर इन मोर देन 90% ऑफ केसेस देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन्स. मतलब गॉलस्टोन्स क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस काज करवाते हैं इन द मोर देन 90% ऑफ केसेस, एंड देयर मे बी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. और इन 1/3 ऑफ केसेस देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ ई कोला एंड द इंटीरोकोकाई बैक्टीरिया इन द बाइल. सो इसकी जो मार्फोलॉजिकल फ़ीचर्स हैं उसमें हम यूजुअली इसकी जो मार्फोलॉजी होती है वो इतनी सीवियर नहीं होती, मिनिमल मार्फोलॉजी होती है, उसके मार्फोलॉजिकल फ़ीचर्स वेरिएबल होते हैं. अगर हम सीरोसा की बात करें तो यूजुअली इसकी जो सीरोसा है वो स्मूथ एंड ग्लिसनिंग होती है, बट इन द केस ऑफ सब सीरोसल फाइब्रोसिस इट विल बिकम डल इन अपीयरेंस. सो द सीरोसा इज़ यूजुअली स्मूथ एंड ग्लिसनिंग, but in the case of subserosal fibrosis it becomes like dull in appearance, and in the wall of the gallbladder there will be a variable thickening and it has the opaque gray white appearance. Pathologic examination, there will be inflammation. In the milder cases of inflammation there will be only scattered lymphocytes, plasma cells and macrophages in the mucosa and the subserosal fibrous tissue. मतलब इन्फ्लेमेशन के माइल्ड इन्फ्लेमेशन में या माइल्डर केसेस में सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा एंड सबसेरोसल फाइब्रस टिश्यू में. यहाँ पे in the milder cases there will be no any subepithelial or the subserosal fibrosis, but in the advanced cases there will be a marked subepithelial and the subserosal fibrosis. And also there is a quite prominent feature which is known as the Rocket and Squarescope sinuses. These are actually diverticula or the outpouching of the mucosa of the wall of the gallbladder. मतलब for example this one is the wall of the gallbladder, there is a mucous membrane, there is a lamina propria and the muscular layer. So इसमें क्या होता है कि जो gallbladder की mucosa है उसका diverticulum फॉर्म होता है, मगर ये diverticulum lumen के अंदर फॉर्म नहीं होता, ये mucosa का diverticulum होता है within the muscular layer. like mucosa ऐसे outpouching या diverticulum फॉर्म करती है, और इस outpouching या diverticulum में यूजुअली बाइल प्रेजेंट होता है. अब ये इसकी मार्फोलॉजी. अब रेयर केसेस में क्या होता है, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं. या सीवियर केसेस की बात करें, सो these are 3 important conditions. The first one is a porcelain gallbladder. Porcelain gallbladder इसको हम calcified gallbladder या calcifying cholecystitis भी कह सकते हैं. इसमें एक्चुअली क्या होता है, there will be extensive dystrophic calcification within the wall of gallbladder. In rare instances क्या होता है कि gallbladder की जो wall है वहाँ पे dystrophic calcification होती है, मतलब कैल्शियम की accumulation हो जाती है, और वॉल में कैल्शियम की एक्यूमुलेशन की वजह से जो गॉलब्लैडर की वॉल है वो ब्रिटल एंड थिक हो जाती है अपीयरेंस में. इट विल बिकम ब्रिटल, थिक एंड हार्ड इन अपीयरेंस. सो इस कंडीशन को हम पोर्सलिन गॉलब्लैडर कहते हैं, और इस केसेस में जो गॉलब्लैडर कैंसर के चांसेस होते हैं या रिस्क होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. Another condition is a xanthogranulomatous cholecystitis. Xanthogranulomatous cholecystitis, in this condition the gallbladder become massively thickened, it will become shrunken at the nodular and the chronically inflamed with the foci of the necrosis and the hemorrhages. So xanthogranulomatous condition में क्या होता है कि एक्चुअली जब ये आउट पाचिंग या डायवर्टिकुलम ऑफ द म्यूकोसा होते हैं, जब ये रप्चर हो जाते हैं तो इनके रप्चर होने की वजह से ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है. अब xanthogranulomatous cholecystitis, एज द नेम इंडिकेट्स, cholecystitis मीन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉलब्लैडर. xantho मीन्स xanthoma सेल्स. एक्चुअली क्या होता है कि जो गॉलब्लैडर की वॉल है वहाँ पे ल्यूमिन में यानी मैक्रोफेजेस होते हैं, वो मैक्रोफेजेस
बिलियरली फास्फोलिपिड को इनगल्फ करते हैं। सो दीज लिपिड कंटेनिंग मैक्रोफेजेस हैज़ अ फोमी साइटोप्लाज्म आर द फोमी अपीयरेंस एंड दीज लिपिड कंटेनिंग सेल्स आर नोन एज अ ज़ेंथोमा सेल्स एंड द ग्रेनुलोमेटस मीन्स यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड द नेक्रोसिस एंड द हेमरेजिस प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसका नाम है ज़ेंथोग्रेनुलोमेटस कोलिसिस्टाइटिस। एंड इन दिस कंडीशन gallbladder has a massively thickened wall. It is a shrunken nodular appearance and it is chronically inflamed with the foci of the necrosis and the hemorrhages. So the last condition is the hydrops of the gallbladder. अब जो सीवियर केसेस होते हैं क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस के, अनट्रीटेड केसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि गाल ब्लैडर की अट्रोफी हो जाती है एंड देयर विल बी अ accumulation of clear secretions. So this condition is known as the hydrops of the gallbladder.